Good morning, welcome back to the channel Awesome Learning. And today we are going to start with a new lesson, Biotechnology and its applications. We have already finished the processes and principles, that chapter. Now the next chapter is Biotechnology and its applications. So let's begin with it. Biotechnology applications. Where can we apply this knowledge of biotech that we have already studied in the previous chapter? So we use it in biopharmaceuticals, therapeutics, diagnostics, genetically modified crops. We have learned much about them. Processed food, bioremediation, waste treatment, and energy production. So these are the various fields where we can use biotechnology. Okay. So biotechnology, its applications. Three critical research areas of biotechnology. First one is provide best catalyst in the form of improved organism, usually a microbe or a pure enzyme. So three critical researches that we want to do, or we are already in a process of doing them, is we have find out that it is a kind of a best catalyst, and we have seen that this catalyst is either in the form of a microorganism or it is a pure enzyme. And because of these things, because of the microorganism or due to the enzyme, whatever process we want to do, it takes less time, because catalysts are the things which will enhance the reaction but itself will not moderate or will not participate in that reaction. So this is one thing that we have already achieved, and we are still in a process of achieving it. Second thing is we want to create optimum conditions through engineering for a catalyst to act. We want to give this catalyst, either the catalyst is a microbe or it is a pure enzyme. So we want to give it a perfect environment which has optimal conditions, okay, so that it can act properly. And then downstreaming, as we have already studied in the previous chapter, downstream processing technologies, so that we can get pure form of protein or organic compound, whatever we want to achieve. Okay? So these are the three critical as areas in which we are going to study about the and use biotechnology. So first thing here is application in agriculture, where how biotech has been used in agriculture. Three options for increasing the food production. Now see, the basic thing we want to do in this world is that population is increasing, but the supply of food is less. We have seen many countries are still fighting for the basic thing, that is the food. The countries like Africa, they are still not getting proper food that they should get the nourishment. They children are actually you can say malnourished. Okay, they have very poor health. And if you see the countries like Syria, you go to some other countries which are very underdeveloped, the basic problem they are facing is less amount of food, because either they cannot produce that food or they are unable to buy it from other countries. So we want to have maximum food so that everybody can get it. So what are we doing here is agrochemical based agriculture, or we are trying to have organic agriculture, and we are also trying to have genetically engineered crop based agriculture. That means we want to modify the crops and grow them so that we can get large number of production. So we follow any of the three steps here to just increase the production. So genetically modified organisms, or GMOs, are the plants or bacteria or fungi and animals whose genes are altered by manipulation. So I don't think I need to explain this, because already this has been done in the previous chapter very nicely and very elaborately. So you know what is a GMO. Now, advantages of GMO in genetically modifying in plants. What are the various advantages of genetically modifying the plants? So first thing is it makes the crops more tolerant
to abiotic stresses. Now, you know what are abiotic factors like temperature, soil, or salinity of the soil, or temperature, or drought, or cold. So these are the factors which are abiotic factors. And if I want कि मेरे crop को कोई भी problem ना हो और मेरे crop बर्दाश्त कर ले, अगर मेरी crop cold बर्दाश्त कर लेती है, drought बर्दाश्त कर लेती है, या salinity बर्दाश्त कर लेती है, या heat बर्दाश्त कर लेती है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी. अगर एनवायरनमेंट में चेंज आया भी तो भी मेरी क्रॉप वैसे की वैसे ग्रो करेगी. सो दैट मीन्स इट इज टॉलरेंट. तो जेनेटिकली मॉडिफाइंग करके हम क्रॉप को टॉलरेंट बना सकते हैं. देन वी कैन ऑल्सो मेक देम पेस्ट रेजिस्टेंस, यानी कि पेस्ट कैन नॉट हार्म माई क्रॉप. तो जब पेस्ट रेजिस्टेंट होंगे, यानी कि पेस्ट आने आए चाहे ना आए, क्रॉप को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्रॉप अपने आप उसको फाइट कर रहा है. तो कोई केमिकल का यूज करने की जरूरत ही नहीं है, कोई पेस्टिसाइड यूज करने की जरूरत ही नहीं है उस क्रॉप के लिए, बिकॉज दे आर ऑलरेडी पेस्ट रेजिस्टेंट. उनको पेस्ट हो या ना हो, क्रॉप को कोई फर्क नहीं पड़ता. सो वी विल नॉट यूज केमिकल्स. Then it helps to reduce post harvest losses. That means हार्वेस्टिंग के बाद कई बार क्रॉप्स में काफ़ी नुकसान हो जाता है. सपोज बहुत सारा क्रॉप जो है हार्वेस्टिंग हो गई है एंड इट इज स्टिल ऑन द लैंड, वहीं पर रख दिया है, ठीक से प्रॉपर केयर नहीं ली, स्टोरेज प्रॉपरली नहीं की, तो भी खराब हो सकते हैं ग्रेन. लेकिन अगर मेरी क्रॉप ही ऐसी है, मेरी क्रॉप ऐसी है कि मैंने स्टोरेज ठीक से नहीं भी की, तो भी मेरी जो हार्वेस्ट है वो ठीक है, तो again I am not at a loss. Then it increases the efficiency of mineral usage by plants. That means हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम प्लांट को मॉडिफाई कर दें कि वो सॉइल से मैक्सिमम मिनरल्स एब्जॉर्ब कर ले. ठीक है, मैक्सिमम मिनरल्स अब्जॉर्ब भी कर ले, एंड जो भी मिनरल्स उस प्लांट को मिल रहे हैं, ठीक है, जो भी मिनरल्स, सपोज मेरे पास एक फील्ड है, आई एम अ फार्मर, देयर इज अ फील्ड आई हैव गॉट, और मैंने पहली फसल उगाई, और पहली फसल जब मैंने उगाई तो जो भी मिनरल्स उस फसल ने अब्जॉर्ब किए, उन्होंने उस थोड़े से मिनरल से मैक्सिमम आउटपुट दिया. इससे क्या होगा कि जो पहला मेरा फसल था, फर्स्ट टर्न जो था, उन्होंने मिनरल्स तो लिए सॉइल से, बट सारी की सारी सॉइल को एग्जॉस्ट नहीं किया. दैट मीन्स सारा कुछ पहली फसल ही सारा का सारा मिनरल्स नहीं ले गई. उन्होंने ऑफ कोर्स मिनरल्स लिए, बट थोड़े से लिए, बट उस थोड़े से आउटपुट ज्यादा दिया. तो इससे क्या हुआ कि मेरी सॉइल जो है वो अभी भी फर्टाइल है, तो मैं नेक्स्ट टर्न और उसका नेक्स्ट टर्न भी उगा सकती हूँ. ठीक है, so this I can also make by modifying the crop. Then it enhances the nutritional value of the food. Example, golden rice. अब you have seen that पहले जो राइस थे उसमें न्यूट्रिशन का वैल्यू बहुत कम था, लेकिन हमने मॉडिफाई करके क्रॉप को ऐसा बना दिया कि क्रॉप वही है, बट उसके अंदर जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो बढ़ गई है. यानी पहले जो राइस थी उसमें विटामिन ए उतना नहीं था, बट अब जो राइस आ रही है गोल्डन राइस, उसमें विटामिन जो ए जो है दैट इज वेरी हाई, तो न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ गई. Then GM, genetically modified, is used to create tailor-made plants to supply alternative resources. जैसे स्टार्चेस है, ऐसे प्लांट्स जो मेन प्रोडक्ट है उस प्लांट से तो लिया हमने, लेकिन उसी प्लांट के बाकी हिस्सों को हम किसी और काम में यूज कर सकते हैं. जैसे हम स्टार्च बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, या हम उसी प्लांट को फ्यूल्स में यूज कर सकते हैं, या उसी प्लांट को हम फार्मास्यूटिकल्स में यूज कर सकते हैं, कहीं भी इंडस्ट्रीज में यूज कर सकते हैं. यानी वो प्लांट्स मुझे फसल तो दे ही रहे हैं, जो भी उसका प्रोडक्ट है वो तो मैं ले ही रही हूँ, बट उसके अलावा आई एम यूजिंग द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट इन सम अदर प्रोसेसेस. सो दैट इज ऑल्सो बीइंग डन. So these are the various applications. ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है कि give certain advantages of genetic modification in plants. So these are the points, and you will write your answer in points. Okay. Then children, we come to pest resistant plants. Pest resistant plants act as a biopesticide. देखो याद रखो, what are pesticides? Pesticides are the chemicals which we sprinkle on the crop ताकि हम अपनी क्रॉप को पेस्ट से बचाएं. ठीक है, लेकिन वो जो पेस्टिसाइड्स हैं जो हम दवाई डालते हैं, दे आर केमिकल्स, एंड वो पेस्ट को तो मारते हैं,
बट वो पेस्ट को मारने के साथ साथ अच्छे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको भी मार देते हैं, प्लस सॉइल की फर्टिलिटी को भी वो हिंडर करते हैं, एंड वो हमारे फूड सिस्टम यानी फूड चेन में भी एंटर कर जाते हैं थ्रू मेनी मीन्स. So chemical fertilizers or pesticides are not good. So better we use biopesticides. अब biopesticide क्या है कि पेस्ट रेजिस्टेंट है. मेरे प्लांट जो है वो उस पेस्ट से रेजिस्टेंट है, यानी मेरे प्लांट के आसपास अगर पेस्ट है भी तो भी मेरे प्लांट को कोई फर्क नहीं पड़ता. तो मेरा प्लांट जो है वो बायोलॉजिकली उससे बच रहा है पेस्ट से. तो ये बायोपेस्टिसाइड है, इसमें किसी केमिकल का यूज नहीं हुआ. So it reduces the need for insecticides. अब हमने ऐसे बहुत सारे बना लिए हैं प्लांट, जैसे बीटी कॉटन बना लिया हमने, बीटी कॉर्न बना लिया, राइस है, टोमेटो, पोटैटो, सोयाबीन. हमने बहुत सारे ऐसे क्रॉप्स हैं जिनको हमने बायो पेस्टिसाइड्स की तरह यूज करना शुरू कर दिया है क्योंकि वो पेस्ट रेजिस्टेंट. ठीक है. नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस बीटी कॉटन. एक एग्जांपल हम लेते हैं. सम स्ट्रेन्स, नाउ चिल्ड्रन प्लीज मार्क माय वर्ड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. each and every line is important here. Some strains of Bacillus thuringiensis have proteins. They have proteins that kill the insects like coleopterans, that is the beetles, lepidopterans, that is tobacco budworm, armyworm, and dipterans, that is flies and mosquitoes. मैं फिर से बोलती हूँ कि बैसिलस थायरोजेनेसिस कुछ ऐसे स्ट्रेन्स हैं, ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसके पास ऐसे स्ट्रेन्स हैं और इनके पास एक ऐसा प्रोटीन है कि अगर ये प्रोटीन इन इंसेक्ट्स ने खा लिया, अगर ये प्रोटीन इन इंसेक्ट्स ने खा लिया तो ये इंसेक्ट्स मर जाएंगे. ठीक है. तो हमें ये बात पता चल गई, साइंटिस्टों को ये बात पता चल गई कि अच्छा अगर ये कीड़ों को हमें मारना है तो क्या करो जी, बैसिलस थायरोजेनेसिस के इस प्रोटीन को यूज करो. कैसे यूज करें? अब ये प्रोटीन तो इस ऑर्गेनिज्म के अंदर है, पर हमें पता चल गया कि इनकी कमजोरी क्या है कि अगर ये प्रोटीन इनकी बॉडी में चला गया तो ये मर जाएंगे. हमने क्या किया, बैसिलस थायरोजेनेसिस फॉर्म्स अ टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन. अब हमें पता चला कि क्यों मर जाते हैं, ऐसा क्या है इस प्रोटीन में कि इस प्रोटीन को खाते ही ये कीड़े मर जाते हैं. तो हमने पता चला कि ये जो प्रोटीन है ये टॉक्सिक प्रोटीन है और इंसेक्टिसाइडल है, यानी इंसेक्ट को मारने वाला प्रोटीन है. ठीक है. बीटी टॉक्सिन बोलते हैं इस प्रोटीन को. एंड क्रिस्टल्स, और ये क्या करता है, इट फॉर्म्स क्रिस्टल्स. ये जो प्रोटीन है इट फॉर्म्स क्रिस्टल्स ड्यूरिंग द फेज ऑफ देयर ग्रोथ. इट डज नॉट किल द बैसिलस. अब बैसिलस को तो ये नहीं मारता, जिसके अंदर वो प्रोड्यूस हो रहा है उसको कोई हार्म नहीं करता, एज इट एग्जिस्ट इन एन इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन. अब बैसिलस को वो हार्म क्यों नहीं करता? क्योंकि वो बैसिलस के अंदर है जब तक इट इज इन इनएक्टिव फॉर्म, यानी प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में. लेकिन जब ये इंसेक्ट इस प्रोटीन को इंजेस्ट करता है, जब कोई भी इंसेक्ट इस प्रोटीन को अपनी बॉडी में लेता है या उसे खाता है या उसे इंजेस्ट करता है, तो जो इनएक्टिव टॉक्सिन है वो एक्टिव हो जाता है. और क्यों हो जाता है? ड्यू टू द अल्कलाइन पीएच ऑफ द गट. इंसेक्ट के गट में जो पीएच है दैट इज अल्कलाइन. तो उस अल्कलाइन पीएच की वजह से जो इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन है दैट बिकम्स टॉक्सिक, दैट इज एक्टिव, and it solubilizes the crystals. तो यहाँ पे तो वो क्रिस्टल फॉर्म में था, जब वो इनएक्टिव था इट वाज इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स, लेकिन जब वो एक्टिव हुआ तो सारे क्रिस्टल्स सॉल्युबलाइज हो गए. सो द टॉक्सिन बाइंड्स टू द सरफेस ऑफ मिडगट एपिथेलियल सेल्स. तो टॉक्सिन क्या करता है, जाके मिडगट के एपिथेलियल सेल्स के साथ बाइंड कर जाता है एंड वहां पर इट क्रिएट्स पोर्स, छेद बना देता है. अब ड्यू टू दीज पोर्स इट कॉजेज सेल स्वेलिंग, एंड एक पॉइंट आएगा ना जब सेल स्वेल होगा, धीरे धीरे स्वेल होते होते इट विल बर्स्ट, यानी लाइसिस, एंड द डेथ ऑफ द इंसेक्ट अकर्स, जिसकी वजह से इंसेक्ट की डेथ हो जाती है. ठीक है. तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट दिस बीटी कॉटन. तो हुआ क्या, बीटी कॉटन टॉक्सिन जीन्स वर आइसोलेटेड. तो हमें जब ये बात पता चल गई
हमें ये सारी चीजें पता चल गई ना, ये कहानी सारी समझ आ गई हमें। साइंटिस्टों को समझ आ गया कि बैसिलस थायरजेनेसिस के अंदर एक प्रोटीन है जो जब तक उसके अंदर है तब तक तो इनएक्टिव है, क्रिस्टल फॉर्म में है। लेकिन अगर इस प्रोटीन को ये वाले जो इंसेक्ट्स हैं वो अगर इस प्रोटीन को खाते हैं तो जैसे ये प्रोटीन उस इंसेक्ट की गट में जाता है और उसे वहां पीएच अल्कलाइन मिलता है तो सारा का सारा प्रोटॉक्सिन या इनएक्टिव टॉक्सिन जो है वो एक्टिव हो जाता है और क्रिस्टल्स जो है वो सॉल्युबलाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से दे गो एंड जॉइन द और दे bind with the surface of epithelial cells and they create pores, and due to these pores the swelling occurs and after some time there will be lysis and the insect dies. अब ये सारी बातें जब हमें पता चल गई तो हमने क्या करा, हमने बीटी टॉक्सिक जीन जो बैसिलस थायरीजेनेसिस के अंदर जो जीन इस टॉक्सिन के लिए रिस्पॉन्सिबल था, जो जीन इस प्रोटीन को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल था, हमने उस जीन को ढूंढा। हमने कहा कि हम उस जीन को पकड़ते हैं जिसकी वजह से ये टॉक्सिन बैसिलस थायरीजेनेसिस के अंदर बनता है। हमने उस जीन को ढूंढा, उसे आइसोलेट किया। अब आप आइसोलेशन करना तो आता है आपको, यू हैव स्टडीड दिस इन प्रीवियस चैप्टर फ्रॉम बी थायरोजेनेसिस। और हमने क्या किया, उस जीन को हमने इनकॉर्पोरेट कर दिया इनटू द कॉटन प्लांट। हमने उस पीस ऑफ डीएनए यानी उस जीन के टुकड़े को बीटी दैट इज बैसिलस थायरोजेनेसिस से के अंदर से लिया। अब कैसे लेना है आपको पता ही है, आइसोलेशन करोगे, फिर आप कट करोगे, सारा प्रोसीजर पीसीआर करोगे, सब कुछ करके आपके पास मिल गया, आपके पास जीन आ गया। आप इस जीन को कॉटन प्लांट के डीएनए में फिट कर दो। अब फिट करना भी तो आता है, होस्ट में कैसे फिट करते हैं, सारा कुछ पढ़ लिया हमने पिछले चैप्टर में। अब मोस्ट बीटी टॉक्सिन्स आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक। द टॉक्सिन इज कोडेड बाय द जीन, और हमें जीन पता चल गया कि उस टॉक्सिन की कोडिंग क्या है, CRY1AC। अब आपको पता है ना कि हम इसको नाम कैसे देते हैं, CRY1AC, और हम जनरली इसको क्राई प्रोटीन्स बोलते हैं। एग्जाम्पल, proteins encoded by genes CRY1AC and CRY2AB control the cotton bollworms and that CRY1AB controls the corn borer। क्योंकि सबका अलग अलग है, बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं, हर इंसेक्ट को अलग अलग प्रोटीन्स जो हैं या जीन्स जो हैं दे विल किल। तो हम वी आर गिविंग यू सर्टेन एग्जांपल्स दैट प्रोटीन्स, जो प्रोटीन कॉर्न बॉलवर्म्स के लिए हार्मफुल है, कौन सा प्रोटीन है वो, CRY1AC एंड CRY2AB। और जो कॉर्न बोरर के लिए हार्मफुल है वो कौन सा है, CRY1AB। तो ये 1 मार्कर्स आ सकते हैं, अंडरस्टूड। तो हमने क्या किया, हमने ये वाले जीन्स को कॉटन प्लांट में इनकॉर्पोरेट कर दिया। अब हमारा कॉटन प्लांट जो है उसके पास ये जीन आ गया। जस्ट इमेजिन कितना अच्छा हमने यूज किया इस नॉलेज को। जैसे ही कॉटन प्लांट के अंदर वो जीन आ गया, अब जब कभी कोई इंसेक्ट उस कॉटन प्लांट को हार्म करने के लिए आएगा और वो उसे खाने की कोशिश करेगा तो उस प्लांट के पास वो पर्टिकुलर जीन है जो कि टॉक्सिक प्रोटीन बनाएगा। और जैसे ही इंसेक्ट उस प्लांट को खाने की कोशिश करेगा तो उसकी बॉडी में क्या चला जाएगा, ये इनएक्टिव टॉक्सिक जीन चला जाएगा। जैसे ही वो इनएक्टिव टॉक्सिक जीन इंसेक्ट के गट में जाएगा, अल्कलाइन पीएच देखते ही वो क्या टॉक्सिक जो प्रोटॉक्सिक था यानी जो इनएक्टिव था, इट विल बिकम टॉक्सिक और इट विल बिकम एक्टिव, और जो इंसेक्ट है वो ऑटोमेटिकली मर जाएगा। यानी कॉटन प्लांट जो है अब रेजिस्टेंट हो गया। अब कॉटन प्लांट को किसी भी तरह के इंसेक्ट से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस कॉटन, और ना हमें उस कॉटन प्लांट के ऊपर कोई मेडिसिन छिड़कने की जरूरत है, कोई पेस्टिसाइड छिड़कने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि वो अब रेजिस्टेंट बन चुका है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि हमने कैसे एग्रीकल्चर में इसका यूज किया, एंड बीटी कॉटन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दैट।